So today we will learn about fractions. What is the meaning of fractions? So fraction means a part of a whole. What is the definition of fraction? A part of a whole. Yes. In yesterday's class, we discussed so many examples of fractions. Yes. Like fractions can be used for cooking, fractions can be used in see here, look on the screen. Driving. Driving, cooking, baking. In clock we use fraction. So fractions are used in our real life. Correct? So the topic that we will be doing today is comparing fraction. What topic? Comparing fractions. Yes. You know, when you were a kid, right? You used to, compare numbers using crocodile mouth, remember? And 2000 is bigger or 1599 is bigger. Which is bigger? Tell me. 2000. So we used to put our crocodile teeth towards that. Yes or no? Yes or no? Yes, ma'am. I just want you to focus over here. No writing at this point, only listening. Okay? Now, if I say 2 by 9 is bigger or 3 by 9 is bigger, what do you think is bigger? 3 by 9. 3 by 9. Why? For example, if you have a chocolate, all right, and that chocolate has total 9 pieces. If you eat 2 pieces of a chocolate, the fraction will be 2 by 9. Yes or no? Yes. And if you eat 3 pieces of the chocolate, the fraction will be 3 by 9. Yes or no? Yes. So which one is more? 2 by 9 or 3 by 9? 3 by 9. Logic understood? Sure, बच्चे? Focus here. हमने comparing fraction नहीं learn करा, comparing unlike fractions. Yes, बच्चे, because this is the concept of grade 4. ठीक है? Okay. मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ so that just to make sure आपको पता है. ठीक है? Okay. Where are you looking at right now? Book में. किस लिए? अभी बुक में पढ़ा रही हूँ मैं या क्लास पे पढ़ा रही हूँ? क्लास में. Please focus here, okay? चलो. Tell me, what is bigger, 1 by 6 or 2 by 6? 2 by 6. Good. So can we say that when denominator is same, what is same? Denominator. When denominator is same, which fraction is bigger? जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है. जब दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है तो हमारी सॉरी तो हमारी वो फ्रैक्शन बड़ी होगी जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा. ठीक है? जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर 9 है दोनों का, पर न्यूमरेटर में एक जगह 2 है और एक जगह 3 है. तो 2 बड़ा है 3 बड़ा है? 2. 2 बड़ा है 3 बड़ा है? 3 बड़ा है. 3 बड़ा है ना, तो कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होगी? 3 by 9. क्लियर बच्चे? पक्का? समझ आ गया? चलो गुड. अब देखो, अगर आपको ये गिवन है 2 by 10 and 2 by 4, what is bigger? 2 by 4. 2 by 4 is bigger. That is absolutely correct. Can you give me reason? कि 2 by 4 क्यों बड़ा और 2 by 10 बड़ा क्यों नहीं है? आपने किस लॉजिक से बताया मुझे 2 by 4 बड़ा? नहीं सोचा कुछ? ठीक है, मान लेते हैं I have a rectangle. Okay, this is a rectangle
And for this rectangle, now the denominator is 10. So I'm dividing this rectangle into 10 pieces. Clear? 10 parts. Now in out of 10 parts, how many I should color for fraction 2 by 10? हमें 8 है, 10 नहीं है. मैंने 10 लिखा है. ओह सॉरी, बढ़ाती हूँ, रुको. आप देखो, ठीक अभी है. बढ़ा. ये 2 by 10 हो गई फ्रैक्शन. अब 2 by 4 चेक करते हैं. तो मतलब हमने एक रेक्टेंगल बनाया सेम साइज का, और उसको हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 4. 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, राइट? हो गया 4 पार्ट्स में डिवाइड. अब हमें इस 4 पार्ट्स में कितने कलर करने हैं? 2 कलर करने हैं, 4 कलर करने हैं? 2. तो मैंने ये कलर कर दिए. अब आप बताओ मुझे, फिगर सेम है दोनों की. ये हमारा फर्स्ट रिप्रेजेंट करता है 2 by 4, और दिस रिप्रेजेंट 2 by 4 एंड दिस रिप्रेजेंट 2 by 10. So according to you now, which is bigger, 2 by 10 or 2 by 4? 2 by 4. Why? Because जिसका डिनोमिनेटर बड़ा छोटा होता है, ठीक है, या जिसका डिनोमिनेटर छोटा है. यहाँ पे दो डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है ना, न्यूमरेटर सेम होना चाहिए, ठीक है. न्यूमरेटर इज सेम, ठीक है, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर इज डिफरेंट. तो जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट छोटा होगा वो फ्रैक्शन आपकी बड़ी होगी, ठीक है. तो फ्रैक्शन विद स्मॉलर डिनोमिनेटर इज द बिगर वन. ओके, क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? पक्का? Let me ask you questions. All right. 5 questions on the screen. मेरे को इजी है. बताओ इजी है तो आंसर. बता रही हूँ. पहले आप लिखो. मैं ठीक है. अच्छा, आप मार्क कर रहे हो आंसर्स? करो क्विक. करो करो. गुड. अरे समझ आ गया मतलब अद्विता को, राइट? गुड गुड. गलत हो गया. हाँ, सारा नहीं तो हट गया. कोई बात नहीं, दोबारा लिखो. ठीक है. चलो फिर से लिख दो. ओके. मुझे बता दो, 6 by 7 is bigger or 2 by 7 is bigger? 6 by 7. Okay, 7 by correct. 12. 12 by 12. और 1 3. 1/3. 1/3. 2 Next. 9. 2 2 9. 9th is bigger. क्यों? क्योंकि हमारा न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग है. जिसका 3/4. डिनोमिनेटर छोटा होगा वो सेकंड में हमारी 3/4. फ्रैक्शन बड़ी होगी. सेकंड में 3/4. 3/4. नेक्स्ट. 7 10. वेरी गुड. गुड. समझ आ गया? हाँ जी. हाँ. अब तो डर नहीं लग रहा फ्रैक्शन से? नहीं हाँ, कब लगता था? पहले लगता था ना, जब स्टार्टिंग में 4th में किया था. कब लगता था? स्टार्टिंग में. हाँ, कैसे पता? मेरे को तो कभी भी नहीं लगता था. चलो ठीक है, नहीं लगता तो आगे बढ़े. अगर नहीं लगता था तो बहुत अच्छी बात है. पर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको? हाँ जी. हाँ, बिल्कुल क्लियर हो गया. अब हम बात करेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस की. व्हाट आर अनलाइक फ्रैक्शंस? जिसका उसका कुछ भी सेम ना हो, ठीक है. ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, एवरीथिंग इज डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल 1/2, 9/7.
Which is bigger? What you will do? Now in this, first our aim is to make the denominator same. तो 1/2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए? किससे मल्टीप्लाई करूं? 2 से 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो नीचे 4 आ जाएगा. हम क्या करेंगे? 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. जो सेकेंड वाली फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से. सो 2 टाइम्स 7 क्या हो गया? 2 टाइम्स 7 हो गया. 2 7 16 14. 14. और एक चीज याद रखना रूल, अगर हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 से, तो न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई होगा. ठीक है. अब मुझे एक बात बताओ, 9/7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि नीचे 14 आ जाए? 9 को 7 सोचो, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम करना है. तो अगर हम 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा. हाँ. तो 9 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो आपका आ गया 18/14. आप बताओ कौन सा बड़ा है, 7/14 और 18/14? 7/14. 7/14 बड़ा है. वेरी गुड. 18/14. हाँ जी, 18/14 बड़ा है. और 18/14 कौन सी फ्रैक्शन है? 9/7 वाली. इसका मतलब कौन सा बड़ा है? 9/7 इज बिगर. क्लियर? हाँ जी. हाँ. Next, another example. Quickly see it. Which one is bigger? What will you, first step, what will you multiply 4/6 with? You have to find the equivalent fraction of 4/6. 5. 5. तो 5 को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे. हाँ जी. क्या बन गया? 20 and 30. 20/30. 20/30. You have to say it properly. Next, 7/5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 6. हाँ, 6. 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. क्या बन जाएगा? व्हाट इज 7 टाइम्स 6? 7 6 are 42. 5 6 are 30. Good. Now which one is bigger, 20/30 or 42/30? 7 5. 7 5. 7 5. 7/5. मैंने बताया था ना कल कैसे बोलते हैं. We say it 7/5. So what is bigger? 7/5 is bigger. Concept clear? What do you understand by fraction? Fraction is a part of a whole. What is fraction? Part of the whole. All right. If we have two fractions with us and both the numerators of the fraction is same and denominators are different, so which fraction is bigger? The fraction which with bigger denominator or smaller denominator? The fraction smaller. With smaller denominator. I'm telling you the question again. The numerator is same, denominator is small. One denominator is small, one is big. So the fraction with smaller denominator will be the bigger one. Clear? One. Next, if we have same denominator and numerators are different, which fraction is bigger? Whose numerator is bigger or smaller? Numerator बड़ा है. Very good. समझ आ गया concept? हाँ जी. हाँ. पक्का? हाँ जी. Crystal clear? हाँ जी. हाँ. आज आप सैड हो? नहीं मैम. अच्छा, एक्टिव कम लग रहे हो मुझे क्लास. हाँ, मैंने पूरे दिन कुछ करा नहीं. बोरिंग थी. थक गए थे?
चलो कोई बात नहीं. मैं 6 o'clock 5 o'clock उठती हूँ. Oh, so there is less energy right now, right? Then you came back from school. अब सीधा क्लास तो the आज energy. असेंबली भी थी ना. अच्छा. अर्ली पहुंचना था. मुझे लग रहा है अर्पिता को आज समझ नहीं आ रहा. पक्का समझ आ गया? पूरा समझ आ गया. चलो perfect.